Morning class 7th. It's me, your science teacher Neha Tiwari. Today I'm going to start the first chapter of bio, that is nutrition in plants. As we all know, all the living organisms require food for their growth and survival. The organism needs to take food to obtain energy. We need to take food for what? To obtain the energy, to obtain mineral for the growth, and to obtain materials for the repairing of the damaged part of the body. हम लोग को फूड किन किन कारणों के लिए चाहिए? टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी मिल सके, टू द material that we need for the growth of our body, and to obtain material for the repair of the damaged part of body. The process of taking food by an organism as well as the utilization of the food by an organism is called nutrition. nutrition क्या है? process जो हम food लेते हैं and utilize it for the organism, that is called nutrition. What it is? Nutrition, the process of taking food by an organism as well as the utilization of food by the organism is called nutrition. Plants make their own food, but animals cannot make their food by themselves. They obtain food from plants or other animal that eat plant. Thus, human being and animal depend on plant for their food directly or indirectly. Now we will discuss the various mode of nutrition in the organism in this chapter. What we learn? We learn various mode of nutrition in organism in this chapter. Now we are going to learn the mode of nutrition. The method of obtaining food are called mode of nutrition. Mode of nutrition क्या होता है? जिस मेथड से हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं. On the basis of their modes of nutrition, all the organism can be divided into two main groups. दो मेन ग्रुप बनाए गए हैं जिनके बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन अपने फूड के थ्रू लेते हैं. वो दो ग्रुप कौन से हैं? ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. What are autotrophs? Autotrophs are those which prepare their own food, and heterotrophs which are directly or indirectly depend on other for their food. Now, first topic is autotrophs or autotrophic mode of nutrition. Those organisms which can make their food themselves by simple substance like carbon dioxide, water, by the process of photosynthesis are called autotrophs. And the single autotrophs, I think, is plants which make their own food by the help of carbon dioxide and water. All the green plants are autotrophs. This is because green plant can make their own food from simple substance like carbon dioxide and water present in the surrounding by the process of photosynthesis. In this, the other word, the green plant have autotrophic mode of nutrition. और other word में हम क्या कह सकते हैं? That green plant have autotrophic mode of nutrition. For example, wheat plant are autotrophs. Autotrophs contain green pigment called chlorophyll, which helps them to make the food by absorbing energy from sunlight. जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं जो कि क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट आर green, as we have seen that most of the plant color is green. Hence, synthesize their own food. This means that most of the plant have autotrophic mode of nutrition. The green plant produce food not only for themselves, they also make their food for non-green plants such as well as for animals and human being also. Green plant क्या करते हैं? वो food सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, but वो क्या करते हैं? कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनके लिए भी, एज वेल एज फॉर एनिमल एंड फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी क्या कर सकती है? अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बना सकती है? नो. एंड वाटर प्रेजेंट अराउंड अस बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. क्या प्लांट्स की तरह अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया जाए तो हमारी बॉडी अपना खाना खुद बना लेगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, because our body does not have that green pigment called chlorophyll. हमारे बॉडी में वो green pigment chlorophyll नहीं है. The green pigment chlorophyll is necessary to absorb energy. जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट में, that is chlorophyll, और वो हमारी बॉडी में नहीं है. That's why we cannot make our own food.
Now heterotrophs or heterotrophic mode of nutrition. Those organisms which cannot make food by themselves by the process of photosynthesis and take food from green plant or animal is called heterotrophs. Heterotrophs होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाए बल्कि वो किससे लें, प्लांट से और किसी एनिमल से, तो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ. और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल आर हेटेरोट्रॉफ. जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं और जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, सब हैं हेटेरोट्रॉफ्स. द नॉन ग्रीन प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड. तो जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. दैट्स व्हाई दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. द नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड फंगी और फंजाई यूज से. फंगी सच एज मशरूम, यीस्ट एंड ब्रेड माउल्ड, जितने भी होते हैं. ब्रेड माउल्ड आप देखे होंगे, कभी कभी आप ब्रेड रख दो बहुत दिन का हो जाए तो वाइट वाइट फंगस ग्रो हो जाते हैं या ग्रीन ग्रीन हो जाता है. दैट इज ओनली द ब्रेड माउल्ड आर हेटेरोट्रॉफ. ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ्स. कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर कैटेगराइज इन द हेटेरोट्रॉफ. और ये सब किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द प्लांट or other animal for obtaining their food. Thus all animal like cat, dog, goat, cow, buffalo, deer, lion, tiger and human being are heterotrophs having heterotrophic mode of nutrition. Now photosynthesis, food making process in the plant. Our next topic is photosynthesis. अभी तक हमने पढ़ा क्या होता है photosynthesis. एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. Now we will learn this in the detail. Photosynthesis, the food making process in plant. Green plant are autotroph and synthesize their own food by the process of photosynthesis. The green plant can make their food by simple inorganic substance like, ये हम सबको पता है, अभी इससे पहले भी मैंने बताया that green plant are autotrophic mode and they can prepare their own food by the process of photosynthesis. And what they need simple inorganic substance like carbon dioxide and water and sunlight present in the atmosphere. They utilize it for their photosynthesis process. The plant use the energy in sunlight and prepare the food in the presence of green coloring matter called chlorophyll present in the leaf of green plant. और chlorophyll हमेशा कहाँ present होता है, उनके leaves में. याद रखिए, chlorophyll always present in the leaf, green leaves. We will now discuss the photosynthesis as follow. The process by which green plants make their own food is from the carbon dioxide, water by using sunlight energy is called photosynthesis. The process of photosynthesis can be represented by word equation. Equation में हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, सनलाइट हमें मिल रहा है सन से, इन दोनों को लिया और इनकी प्रेजेंट में क्या मिलता है, बन रहा है ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. What is the formula of glucose? The formula of glucose you can see that is C6H12 and O6. ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. फिर वो क्या होता है, ऑक्सीजन फिर हम यूटिलाइज कर रहे हैं और अदर एनिमल यूज कर रहे हैं. फिर कार्बन डाइऑक्साइड उनमें जा रहा है, फिर वाटर के हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में फिर वो ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होता रहता है. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन द लीफ ऑफ प्लांट. और फोटोसिंथेसिस इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं, तो सारा प्रोसेस कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस ऑक्सीजन गोज इनटू द एयर. और जब ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहा है तो ग्लूकोज वो अपने एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं. और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है and it will be utilized by living organism for their survival. The process of photosynthesis can be shown with the help of figure 3. Here a figure is given, figure number 3. It is mentioned there how the leaves will prepare the food. You can see here
क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है आपका एयर से, सॉइल से वाटर मिल रहा है इनको विद द हेल्प ऑफ रूट स्टेम, यहाँ जाइलम फ्लोएम, ये भी आप बाद में पढ़ेंगे कि किसकी हेल्प से जा रहा है। फिर इसके वाटर इसमें आ रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट फ्रॉम द सॉइल, रूट से वाटर आ रहा है। उसके बाद सनलाइट प्रेजेंट है, लीव्स में आपका लीफ का ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के हेल्प से वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, जो उनका प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं, मीन्स एक्सेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, देखिए इधर बाहर आ रहा है ना। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। The process of photosynthesis first produced in a simple carbohydrate called glucose. Glucose सिंपल कार्बोहाइड्रेट में निकाला है जिसे हम ग्लूकोज एज अ फूड कहते हैं। द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। पहले ये ग्लूकोज में है, फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। दिस स्टार्च गेट्स स्टोर इन द फूड ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। और जब ये फूड प्रिपेयर हो जाता है, ये स्टार्च में चेंज हो गया तो कुछ लीव में रहता है, बाकी रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, फ्लावर में ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव शोन द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्च के प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंस अकरेंस हमारे प्लांट में हो रहा है। सम ऑफ द ग्लूकोज इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लांट food such as fat, oil, proteins as well as vitamins. कुछ स्टार्च, कुछ सम ऑफ द ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट के फूड में, सच एज फैट, जिसमें जैसे हमें कुछ देखिए आपके फ्रूट से, कुछ फूड से आपको प्रोटीन्स मिलता है, कुछ से विटामिन मिल रहा है, ऑयल सीड्स जितने होती हैं जिन्हें ऑयल मिल रहा है, अगर पोटैटो प्लांट है तो फैट्स हमें मिलता है, स्टार्च मिलता है ना। तो क्या होता है, ये ग्लूकोज उसी में टर्न होकर वो हमारे फूड और वेजिटेबल के थ्रू हमें वापस मिलते हैं। द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द लीव ऑफ प्लांट, सो द लीव इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसीलिए जितना प्रोसेस है ये हमारा, वो सब कहाँ होता है, हमारी लीव्स में होता है। दैट्स वाई लीव्स इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द, जस्ट नाउ आई टेल यू कि लीव इज द कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, बिकॉज जितना क्या हो रहा है, सब सारा काम, कार्बन डाइऑक्साइड आना, वाटर आना, और सनलाइट लीव्स पे पड़ रही है, क्लोरोफिल हमारा लीव्स में होता है, तो सारा खाना किस में बन रहा है, हमारा सारा फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में, लीव्स से वापस ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरे प्लांट्स में, ग्लूकोज टर्न हो रहा है स्टार्च में। तो दैट्स वाई सारे प्रोसेस में हो रहा है, दैट्स वाई लीव्स इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द plants. Leaf is called food factory of the plant. The leaf of a plant can synthesize food because they contain green pigment, that is chlorophyll, which is necessary for making food. Other part of the plant usually cannot synthesize food because they do not contain chlorophyll. तो स्टेम चाहे हो, आपका रूट हो, वो फूड नहीं बना सकता बिकॉज उसमें वहां पे क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, वी विल गोइंग टू लर्न। What the condition necessary for the photosynthesis? The presence of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट, ये चार कंडीशन है सर। इनमें से कोई भी एक मिस होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशन। नाउ वी विल describe how the leaves of plant get carbon dioxide water for the making food by the photosynthesis. अब हम इसमें इन टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे मिलता है लीव्स को टू सिंथेसाइज देयर फूड, how the plants can obtain carbon dioxide from food for photosynthesis, how the plant gets carbon dioxide to prepare their food. The plant take carbon dioxide gas needed for photosynthesis from air. Plants को कहाँ से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, from the air. As we know, air is the mixture of gases and we know very well the 78% of the atmosphere is covered with the carbon dioxide.
71% and 78% carbon dioxide, 23, then 1% is other gases. 21% is oxygen and 1% is other gases. So come to the main point, that plants get the carbon dioxide gas from the atmosphere for the photosynthesis. The plant take carbon dioxide gas from air through their tiny pores called stomata. आप सबको पता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि that leaves have the small pores in the इट इज प्रेजेंट इन साइड, मतलब अपर साइड पार्ट, और उसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा. तो स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, लीव्स क्या होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैच करते हैं एटमॉस्फेयर से, which is present in the surface of the leaf. Actually there is a large number of tiny pore called stomata on the surface of the leaf. जितने leaves हैं प्लांट में, सब में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं. ईच पोर हैव सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल. और जितने स्टोमेटा हैं, जस्ट नेक्स्ट फिगर पे आप अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जितने भी स्टोमेटा होते हैं उनमें गार्ड सेल होता है जो उस स्टोमेटा को सेफ रखता है. The opening of and the closing of stomatal pore in the leaves is controlled by the guard cell. Opening और closing उस स्टोमेटा का सब कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है, which is shown in figure 4. Show open stomatal pore whereas shown the stomatal pores closed position. The carbon dioxide present in the air enters in the leaf by the leaves of a plant through the stomatal pore present on the surface of the leaf and utilized in photosynthesis. The oxygen gas produced in the leaf during photosynthesis go out into air through the same stomatal pore. The stomatal pore of the leaves open only when the carbon dioxide is to be taken or oxygen is to be released, otherwise they remain closed. तो क्या बोला गया है कि गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेना हो प्लांट्स में तभी वो ओपन होते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं, और जब ऑक्सीजन एक्सेल करना हो तो भी वो स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं, उसके बाद क्लोज हो जाते हैं. सो इसके बाद वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस, वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू द फिगर, होल फिगर इन द नेक्स्ट मीन्स सेकेंड ऑनलाइन क्लास. Just prepare your lesson, go through the explanation very well. If you have any kind of confusion, just ask me a question, and have a nice day. Please prepare your lesson, go through the explanation properly. Bye bye, have a good day.